सबसे पहले मैं उन जो 5 शहीद हैं, जिसमें 3 पुरुष हैं, 1 महिला है और 1 नवजात शिशु है, उसे मैं अपनी संगठन की ओर से, मैं उन्हें नमन करता हूँ। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन्हें रेड सैल्यूट करते हुए मैं उन्हें लाल सलाम करता हूँ। May 17, 2021, a big news came out from Sukma district of Chhattisgarh, which changed the thinking of the people about the government. This was the news of the miscarriage of tribal by the security personnel. In fact, on the intervening night of the May 11 and 12 in Silgare, security personnel established a camp overnight by capturing the land of 4 farmers. In the morning, when the villagers saw it, some tribal protested by reaching the camp and asked to vacate the land of the farmers. On this, the security official assured to vacate the camp at the earliest, but no action was taken by the security personnel to remove the camp. And then on May 17, they opened fire on the tribals who reached the camp to protest. In this violence, 4 tribal, including a pregnant woman, died due to the bullet injuries. Since then, this movement has not stopped and continued continuously. More than 10,000 tribals gathered in Silgare on Tuesday to remember the martyrdom of their comrades. This was the occasion a year later of the first anniversary of the Silgare violence. They all reached there in the form of a rally where their comrades were killed by the bullets of the security personnel. This was the same place where the security personnel have set up their camp. Here, the crowd of the tribals and the soldiers of the police camp came face to face. The tribal took out their anger against the government and the security personnel here for about an hour and then left for the agitation site. Here, the tribals organized a general meeting and many fierce speeches were given against the anti-tribal policies of the government. Not only this, everyone also took an oath in one voice: they will remain mobilized till their death regarding the opening of the camp and the road to be built for the exploitation of the water, forest, land. Recalling the case of miscarriage of 4 tribals on May 17, the youth Raghuram present there told Main Bastar that on the intervening night of May 11 and 12 last year, suddenly the security personnel occupied the land of the 4 tribal farmers of the village and made it their camp. In the morning, when some tribal reached the camp, in protest, the security official assured them that they would remove the camp from there soon. But seeing that no action was taken to remove the camp, when the tribals started pressurizing the security personnel, they attacked the tribals crowd on 17th May, shot fired. पिछले 2021 को रात 3 बजे मतलब श्रृंगेर में जो कैंप है वो मतलब गैर कानून में डाले। रात को डालना है मतलब पे चोरी छुपके सरकार की है। तो यहाँ के जो श्रृंगेर के जो निवासी करते हैं, ये जो होता है एक पटेल मुखिया जैसे सभी लोग जमा होकर 12 तारीख को गए। जाने के बाद वहाँ से मतलब हमारा ज़मीन है, हम इस ज़मीन पर भूमि पर कृषि करके जीते, पर आप बिना पूछे कैसे कैंप डाले। ऐसे मतलब गांव के 20-22 लोग गए तो बातचीत कर रहे थे कि तो हम ग्राम सभा 5वें अनुसूचित इलाका है, इसमें मतलब ग्राम सभा करके ही कुछ भी हमारे इलाका में ला सकते हो, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी। वो तो सरकार की ज़मीन नहीं होती है, जो इस जगह में निवासी करते उसी का ज़मीन होता है। तो यहाँ के लोग सभी गए हैं बातचीत करने। तो वहाँ से मतलब 10-20 लोग गए थे। उन लोग को 5-6 मिनट के बाद लाठी चार्ज हुआ। होने के बाद दूसरा दिन आसपास के लोग पंचायत के लोग आए और मतलब उस दिन भी ऐसी बातचीत करने गए। उस दिन भी लाठी चार्ज हुआ 13 तारीख को। 14 तारीख को तो लाठी चार्ज हुआ और आंसू गैस फेंके और 15 को भी कंटिन्यू ऐसे चला। 15-16
16 को भी आंसू गैस और गोली हवाई फायरिंग की है। तो कंटिन्यू 12 से लेकर 16 तारीख तक लाठीचार्ज हुआ। 12 तारीख को उन्होंने आश्वासन दिए थे कि जनता को ठीक है हम गैर कानून से डाले तो हम 16 तारीख को निकल जाएंगे, उन्होंने बोले थे। तब ये लोग अपने आदिवासी जो जिसका ज़मीन था उन्होंने अंदर जाते वक्त मतलब फायरिंग स्टार्ट किए। स्टार्ट होने के बाद 17 तारीख की बात है, तो वहाँ से मतलब लोगों को देख देख के मतलब फायरिंग किए। वो तब सबूत किए कि नक्सली फायरिंग करने पर हम फायरिंग किए। उसके बाद हम इधर से जवाब दिए कि जब इधर से फायरिंग करते तो हज़ारों पुलिस थे, तो उसमें एक जन को भी क्यों गोली नहीं लगी, ये खबर पहुँचे। तो तब से हम लोग आंदोलन एकदम कंटिन्यू रखे और 17 जो मई को आए उसमें 4 लोग शहीद हो गए और एक गर्भवती महिला लाठीचार्ज में शहीद हो गई। उसके बाद 18 लोग घायल हो गए और 296 लोग लाठीचार्ज में 296 से अधिक लोग थे वो लाठीचार्ज से ऐसा हो गया। तब से कंटिन्यू फिर चला, यहाँ से श्रृंगेर से फिर तर्रेम गए, तर्रेम में सेक्का जाम बंद किए। वहाँ मतलब सरकार को पहुँचना चाहिए कि आदिवासी लोग इसको क्यों लड़ रहे। CPI leader Sanjay Parate said that this government is working with the policies of destroying the water, forest, land of the tribal and want to hand over their natural mineral wealth to the industrialist. In Silgir, innocent tribals are killed by the bullets of the security personnel and the government does not even give compensation to the victim, far from taking actions against the culprit. पूरे बस्तर में आदिवासी आंदोलन चल रहा है और मुख्य रूप से वो इस बात पर केंद्रित है कि जो हमारे जल, जंगल, ज़मीन, खनिज और दूसरी प्राकृतिक संसाधन लूटे जा रहे हैं कारपोरेटों के द्वारा, वो रोका जाए। क्योंकि एक तो आदिवासी जनजीवन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और दूसरी बात यह है कि सरगुजा में यदि जंगल नहीं रहेंगे, बस्तर में जंगल नहीं रहेंगे तो पूरा छत्तीसगढ़ ही जो है वो बर्बाद होने वाला है। इसलिए ये जो आंदोलन चल रहे हैं वो छत्तीसगढ़ को बचाने की लड़ाई है, आदिवासियों के उनकी ज़िंदगी को बचाने की लड़ाई है। लेकिन सरकार इस तरीके के किसी भी संदेश को बाहर नहीं जाने देना चाहती कि कारपोरेट लूट के खिलाफ आदिवासी संगठित हो रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं और इसलिए गोलियां चली। दुर्भाग्यजनक बात थी। जिन आदिवासियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया उस आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से उन्होंने गोलियां चलाई, 5 लोग मारे गए और उसके बाद सरकार ने बहुत ही सुनियोजित कोशिश किया कि बाहर मामला न जाए, संदेश बाहर न जाए आदिवासियों का, और उन्होंने जगह जगह रोकने की कोशिश किया। और दूसरी बात ये आज की बात नहीं है, सालों से आप खुद भी जानते हैं कि किस तरीके से बस्तर को एक अलग देश की तरीके से डील किया जा रहा है। हम इस देश के नागरिक हैं, कहीं पर भी जाने का अधिकार है, लोगों से मिलने का अधिकार है, उनके सुख दुख में, आंदोलन में भाग लेने का अधिकार है। ये संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है, लेकिन इस अधिकार से भी इस देश के नागरिकों को वंचित करने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह छावनियाँ बैठाल कर आप कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, विदेशी नागरिक से पूछताछ हो तो समझ में आता है। छत्तीसगढ़ के लोगों को इस देश के नागरिकों से यदि ये पूछताछ की जाती है और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम तो ये कह रहे हैं कि दोषियों को सज़ा दीजिए। आप देखिए कि एक छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है तो मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता। तो एक राज्य प्रायोजित हत्याकांड हुआ है, 5 लोग मारे गए हैं, तो उन परिवारों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, उन दोषियों को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो सरकार यदि ईमानदार होती तो त्वरित गति से जो है सज़ा जो है लोगों की सुनिश्चित करती, लेकिन सरकार ईमानदार नहीं है और इसीलिए वो सरकार ही बता पाएगी कि मामला कहाँ लटका हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि जितनी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आई है उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ये यदि रिपोर्ट आ भी जाएगी तो उस पर भी ये कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। और ये जांच क्या है, सरकार ने हत्याकांड किया है, अब उसका एक छोटा सा अधिकारी कोई मजिस्ट्रेट यदि जांच करेगा तो उस जांच की रिपोर्ट क्या होगी, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Soon I will meet again with other story. Till then, Jai Johar.